Hello students, welcome to my channel Gyan Ganga once again, and now here we are going to discuss some literary terms which is going to be useful for you in your UP TGT PGT exams for English literature, and equally it is useful for NTA UGC NET exam. So without wasting time, we'll start with a new term, the decadence. तो स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और हम यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं जिसमें हम पूरा यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस कवर करेंगे, और उसके बाद हम फिर नेट की क्लासेस दोबारा अपनी शुरू कर देंगे। तो आप जो भी लोग नेट के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, मेनली जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअली वो आएंगे यहाँ पर। सो आई एम गोइंग टू टीच यू द इंग्लिश लिटरेचर and I will try to cover all the aspects which are very important from English literature from the एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना नया एक लिटरेरी टर्म, या जो भी कह सकते हो, इस तरह की जो भी ग्लॉसरी हैं हमारी लिटरेचर की, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। खास करके जो एम एच अब्राहम एक बुक है, अगर आप पढ़ते होंगे, खैर पढ़ते तो होंगे ही आप लोग, तो अगर आप वो बुक आपके पास है तो ले लीजिए, है तो वहाँ से पढ़िए। वहाँ से भी कई चीज़ें मैं ले रहा हूँ, कई चीज़ें नेट से हैं, कई चीज़ें एक दो किताबें और हैं मेरे पास, उससे हैं। तो मैं अलग अलग जगहों से पूरा कंपाइल करके प्रेजेंटेशन बनाया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीजीटी पीजीटी नेट एग्जाम के लिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट विद द टर्म द डेकेडेंस। सो it started in the later part of the 19th century, and its proponents include Charles Baudelaire, and their views lead to the development of a movement called the decadence. So there is a movement, there is a kind of belief, there is a kind of thinking which developed in the later part of the 19th century, and the proponents mainly were Charles Baudelaire, and their views, their thinking, all these things developed into a sort of movement known as decadence. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, हम डेकेडेंस के बारे में डिस्कस करें। डेकेडेंस है क्या? ये एक तरह का मूवमेंट है, एक तरह की सोच विचारधारा है, और एक तरह का ये कॉन्सेप्ट हो जो डेवलप हुआ है, जो मेनली चार्ल्स बॉडलायर के विचारों से हुआ है, और ये लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ है। और तो इसका नाम दिया गया डेकेडेंस। यस, नाउ व्हाट इज डेकेडेंस? The movement was based on the belief that art is totally opposed to nature. So this we have to remember very well, that what is actually decadence. So you have to remember that this decadence is what? This is actually related to a kind of belief in which it is believed that the art is totally opposed to nature. It means art should not be related to nature. Art is opposed to nature. Art should not have any concern with the natural things or nature, or in sense of biological nature, it may be biological nature, or for the standards of the normal morality and sexual behavior. They were opposite to all these things. They were opposite to the morality, they were opposite to the sexual behavior, sexual conducts and standards of society which were formed as a norms of morality or biological nature. Or simply we can say that the proponents of this movement believed against all these things. They were against this. We have to remember that they just disregarded all these things, that there should be a morality, there should be a standard of morality, there should be a standard sexual behavior, there should be something related to nature. So art should not be related to it. So they just rejected that art should not be related to all these things. So they just rejected all these things. So they said that art is totally opposed to nature. So art is opposed to nature. This is what actually they talked about. So this is what they presented in their beliefs. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बोलते हैं भाई कि डेकेडेंट मूवमेंट के जो लोग थे, जो उनकी विचारधारा थी, वो ये थी कि भाई जो आर्ट होती है, जो कला है, वो नेचर से अगेंस्ट होनी चाहिए, उसकी अपोज होनी चाहिए। नेचर का कोई इसमें फॉलोइंग नहीं होना चाहिए, नेचर को फॉलो नहीं करना है, चाहे वो बायोलॉजिकल नेचर की बात हो रही हो, चाहे कोई स्टैंडर्ड एक नॉर्मल मोरालिटी या सेक्सुअल बिहेवियर की बात हो रही हो। इन सभी चीज़ों को वो अगेंस्ट थे कि इससे कोई रिलेशन उसका आर्ट का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने प्रकृति के अगेंस्ट आर्ट को बताया है।
आर्ट जो है, कला जो है प्रकृति के अगेंस्ट है, मतलब उससे विपरीत है, अपोजिट है नेचर के। ये इस मूवमेंट के लोगों की विचारधारा थी। इस तरह की विचारधारा डेवलप हुई। कब डेवलप हुई ये आपने यहाँ पे देख लिया था, इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट में ऐसा डेवलप हुआ। So next point we have decadence given more value to artifice than natural. This is what again? They are against nature. They are giving more value to artificial things, or simply they regarded everything which is related to nature. So this is what we have to remember, that decadence means opposite to nature. Everything opposed to nature and giving more value to artificial things. So this is what we have to remember, that they given more value to artifice or artificial things. They experimented with drugs rather than natural objects. They disregarded the use of natural objects, and they mainly experimented with the drugs, use of drugs in their life to get a kind of bliss, a kind of happiness, or anything, whatever they wanted, that should be opposed to nature. This is what they believe. They were influenced by Gothic novels and by the poetry and prose of Edgar Allan Poe. So Edgar Allan Poe is a very big influence here. He influenced. So you have to remember these names, because question can be asked on these points, that what has the influence on decadence movement. So you have to remember that it is Gothic novel and it is the poetry and prose of Edgar Allan Poe which influenced the decadence movement. So this we have to remember. And earlier we talked one more name, that is Charles Baudelaire. So all these things you have to remember. Charles Baudelaire or Edgar Allan Poe, or you can say the Gothic novels, all these things are the precursors of this decadence movement. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है। डेकेडेंस मूवमेंट के लोगों का यही मानना था कि जो भी है हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जो भी प्राकृतिक चीज़ें उनका यूज़ नहीं करेंगे, उनको नहीं यूज़ करेंगे, आर्ट को उससे दूर रखेंगे, आर्ट से उसको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दिया, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ना यूज़ करना है, ना आर्ट में नेचर के लिए कोई जगह होनी चाहिए, ये सारे इनके बिलीफ थे। तो ये आर्टिफिशियलनेस, मतलब जो भी कृत्रिम चीज़ें हैं उनको ज़्यादा उपयोग करने में ये विश्वास रखते थे, और आर्ट से नेचर को अलग करना चाहते थे। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट को ख़त्म करो, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने ड्रग्स के साथ किए, केमिकल के साथ की, और नेचुरल ऑब्जेक्ट को एकदम से ख़त्म कर दो। और ये किससे इन्फ्लुएंस थे? गोथिक नॉवल से इन्फ्लुएंस थे, और एडगर एलन पो से इन्फ्लुएंस थे, और एक और नाम जो आपने पहले ही पढ़ लिया वो है चार्ल्स बॉडलायर। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, चार्ल्स बॉडलायर से, एडगर एलन पो से और गोथिक नॉवल से, इन चीज़ों से ये सारे इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव जॉरिस कार्ल हुइजमैन्स नॉवेल, जो एक जॉरिस कार्ल हुइजमैन का एक नॉवेल है अगेंस्ट नेचर। ये क्या है? एक मेजर रिप्रेजेंटेशन है of the decadent movement. So decadent movement is very well represented in Joris Karl Huysman's novel Against Nature. So this is a person, Joris Karl Huysman. His novel Against Nature is a work which mainly represents the decadent movement. So decadent movement is supported by this work, actually, you can say. And yeah, we have in Britain and Ireland, Oscar Wilde is associated with this movement. And if we talk about Britain and Ireland, so we'll find Oscar Wilde mainly associated with this movement. So one more name came here, but in context of Britain and Ireland, when we are talking about the Britain and Ireland, we have Oscar Wilde who is associated with this movement. So students, यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले मैं यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। तो कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा यार कि हिंदी में इंग्लिश में। सो वी आर गोइंग टू हैव everything in both the languages, so there is language is not going to be a barrier for you, and my presentations are especially going to help you in TGT, PGT and NET exam, and especially we are focusing here for UP TGT, PGT. So आपको यहाँ पे याद रखना है कि जॉरिस कार्ल हुइजमैन है, इनका एक नॉवेल अगेंस्ट नेचर, ये मतलब मेजर रूप से रिप्रेजेंटेशन करता है डेकेडेंट मूवमेंट का। तो नाम फिर से याद रखिए, जॉरिस कार्ल हुइजमैन का नाम याद रखिए, और अगेंस्ट नेचर इनका नॉवेल, इसका नाम याद रखिए। ठीक है, ब्रिटेन और आयरलैंड की अगर हम बात करें तो ऑस्कर वाइल्ड का नाम याद करिए कि ये इससे एसोसिएट। आपसे पूछ सकता है कि ब्रिटेन और आयरलैंड में कौन है जो मतलब डेकेडेंट मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या उससे एसोसिएटेड हैं, तो वो ऑस्कर वाइल्ड है।
तो देखिए इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे वही पॉइंट्स रखे गए हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा और समथिंग नॉट यूजफुल फॉर द एग्जाम, एंड स्पेशली नॉलेज वी हैव टू गेट। सो वी आर गेटिंग नॉलेज बट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसाइज रखा गया है चीज़ों को। तो आप देखिए यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस हो रही है जहाँ क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अगेंस्ट नेचर पूछ लेगा, किसने लिखा है, किससे रिलेटेड है, तो अगेंस्ट नेचर डेक्कन मूवमेंट से संबंधित है। किसने लिखा है, जोरिस कार्लोइस मैन ने लिखा है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट वी हैव डेकेडेंस वर एसोसिएटेड विद सिंबोलिज्म एस्थेटिसिज्म। So we have to remember that decadents were mainly associated with the symbolism and aestheticism also. From these points, from these thoughts, they developed this kind of thought that everything has to be against nature in art. So mainly there is a connection between decadence and symbolism and aestheticism. So we have to remember that decadents were associated with symbolism and aestheticism. So whenever we are talking about decadents, so we have to remember that they were somehow taken this idea from symbolism and aestheticism. They have taken out it as a different branch. And decadence claimed Charles Baudelaire as their inspiration. जो भी decadence को represent करते, those person who are representing this movement, decadence movement, they were called as decadents. So decadence movement or decadents were mainly saying that the Charles Baudelaire is their inspiration. So Charles Baudelaire is a very important person in decadence. So he is the inspiration for all these things to be developed. तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो डेकेडेंस है वो किससे और संबंधित है, वो सिंबलिज्म से संबंधित है, वो एस्थेटिसिज्म से भी संबंधित है। तो कहीं ना कहीं सिंबलिज्म और एस्थेटिसिज्म से ही इन्होंने बीच में से खोजबीन करके ये नया ब्रांच एक निकाल लिया है। ठीक है, तो डेकेडेंस का आपको ये याद रखना है कि इन्होंने सिंबलिज्म और एस्थेटिसिज्म से कहीं ना कहीं अपना विचारधारा को वहाँ से कुछ अलग करके नया बना लिया। ठीक है, डेकेडेंस क्लेम्ड चार्ल्स बॉडलर एज देयर इंस्पिरेशन, और जो चार्ल्स बॉडलर थे ये मेनली इनके इंस्पिरेशन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट द डेकेडेंस, and if you have any doubt you can ask me in comment box, and if you like the presentation you can share it. Now next term we are going to discuss here is the burlesque. Okay, and what is burlesque actually? So burlesque is the form of literary work which makes us to laugh by ludicrous treatment of the subject matter or the characters of some serious work. So here the treatment of work is done in a ludicrous way. They are such a works which makes us laugh. So burlesque is a kind of work in which characters or matters or all these are in a manner that they are going to make us laugh, but they are a kind of imitation of some serious work. Some serious works are presented in a way that they are going to make us laugh. So this is what we have to remember, that burlesque is a form of literary work which is going to make us laugh by the ludicrous treatment of the subject matter or the character or some serious work. So there will be a ludicrous treatment, that there will be inappropriate treatment. So this is what actually burlesque is. So यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बताया जाएगा भाई बर्लेस्क क्या होता है। तो बर्लेस्क देखिए एक फॉर्म ऑफ लिटरेरी वर्क होता है जो कि मतलब इस तरह से बनाया गया होता है, किसी भी मतलब सब्जेक्ट मैटर या कैरेक्टर या सीरियस वर्क को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, मतलब लुडिक्रस ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब उसको एक मतलब थोड़ा सा हास्यप्रद बना दिया जाता है जिसको पढ़ के सुन के हमें हंसी आती है। ठीक है, जो हमें हंसाता है, जो हमें हंसने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है कि मतलब उसको पढ़ के हमें हंसी आए। तो लुडिक्रस ट्रीटमेंट होता है सब्जेक्ट मैटर का, कुछ कैरेक्टर्स का, कुछ सीरियस वर्क्स का, इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब उसको हास्यप्रद तरीके से, मतलब उसका एक स्टैंडर्ड जो होता है थोड़ा सा उसको गिरा दिया जाता है और वो हंसने लायक बन जाता है। एक्चुअली वो नहीं होता है वैसा, लेकिन उसको ऐसा बना दिया जाता है। तो इस तरह से एक लिटरेरी फॉर्म जो डेवलप हुआ उसको बोलते हैं बर्लेस्क। ठीक है, मतलब जो हंसने योग्य कोई वर्क बन जाता है। तो
So students, next point we have burlesque means the representation of a serious work in a manner which makes it more comic than serious. So a serious work is presented in a manner that it becomes a comic, that it makes us to laugh, that it makes us that we are laughing at some serious work. So burlesque is a presentation in a manner that a serious work also becomes a laughable work in which we are going to laugh. So this is what actually burlesque is. And as a literary term, it developed in Italy and France in 17th century. So we have to also remember that when it developed, so it developed in 17th century in Italy and France. तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना कि बर्लेस्क, जैसा मैंने पहले बताया, कि ये किसी भी एक सीरियस वर्क को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि वो कॉमिक हो जाए, हास्यप्रद हो जाए, ना कि सीरियस रहे। तो एक सीरियस वर्क को भी एक कॉमिक बना देता है। मतलब इस तरह से एक वर्क का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है कि एक सीरियस वर्क भी कॉमिक लगने लगता है और हंसी आती है उसमें, हंसी मजाक या आप कह सकते हो कि कटाक्ष के रूप में कुछ होता है। इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि मतलब एक हंसी वाला सेंस वहाँ पे आ जाए, सीरियसनेस उसमें से ख़त्म हो जाए। तो सीरियस वर्क से सीरियसनेस को ख़त्म कर देना, उसको मजाकिया बना देना, मतलब ठीक है। तो मजाकिया बना देने को ही हम बोलते हैं बर्लेस्क। और ये कब डेवलप हुआ ये टर्म डेवलप हुआ है हमारा 17th सेंचुरी में इटली और फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव द इमिटेशन ऑफ अ डिग्निफाइड वर्क ग्रोटेस्कली कैन बी सेड एज अ बर्लेस्क। व्हाट इज burlesque? Again we are defining it here. When a work is imitated, when a dignified work is imitated grotesquely, there is a grotesque imitation, that is inappropriate imitation, that is not considered standard, below the standard, or you can say a substandard imitation, that is not imitated properly what it was required to be. So imitation is done of a dignified work, that is grotesquely. So grotesque imitation, it means a substandard imitation. It is a burlesque work. And more common example is, you can find a very common example, that Pyramus and Thisbe seen in Shakespeare's Midsummer Night's Dream. So the Midsummer Night's Dream, the Shakespeare's play, if you go through it, you will find that there is a scene of Pyramus and Thisbe, and that becomes very laughable. It should not be laughable, but they did it in a manner so that it becomes laughable, and the people who were watching it, they laughed at it, but there should be nothing like it. The people watching it should not laugh, but the imitation was done in a manner that people are laughing at it. So this is a very common example here. तो स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि किसी भी एक डिग्निफाइड वर्क, किसी भी एक मतलब सीरियस वर्क का जब हम ग्रोटेस्क इमिटेशन करते हैं, यानी कि सब स्टैंडर्ड इमिटेशन करते हैं, बिलो द स्टैंडर्ड इमिटेशन करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं, और इस तरह से नकल करते हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे चला जाता है और फिर उसके ऊपर हंसी आती है हमें। तो मतलब जिस भी वर्क का अगर हम ग्रोटेस्क इमिटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक बर्लेस्क वर्क हो गया। और जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पैरामस और थिस्बी सीन जो है शेक्सपियर के मिडसमर नाइट ड्रीम जो प्ले है उसमें, ये हमारे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है बर्लेस्क का। अगर हम छोटे लेवल पे बात करें, छोटा सा एक सीन है वहाँ पे, तो ये छोटा सा एक बर्लेस्क इमिटेशन वो लोग करते हैं उस सीन को, तो लोग उस पर हंसते हैं, जबकि वो एक सीरियस वर्क था, उसमें हंसने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन उसको इस तरह से वो करते हैं कि लोग उस पर हंसते हैं। Next we have the term burlesque is also used interchangeably with pastiche, parody and travesty. So the term burlesque is also sometimes used interchangeably with pastiche, parody or travesty. So these are also the terms which represents a work which is below standard, which is substandard, which is a kind of work that is not done in an appropriate manner, that is inappropriate copy of a work. So these terms also represent these things, that is burlesque things. So burlesque is also used interchangeably with pastiche, parody and travesty. These three terms you can go in detail about it. So simply here I have put like this. So a major burlesque work is written by Tom Stoppard. A major burlesque work, if we try to find out, is written by Tom Stoppard. That is a play, Travesties, in 1974. So this is a burlesque work, a major burlesque work. You can be asked the question, the travesty is which kind of work?
It is a burlesque work. So you have to remember all these points, because question can be made from each and every single point, and each and every single point can give you 2 or 3 questions. This is what I have prepared this presentation in a manner. So these are some of the points. तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि बर्लेस्क क्या है. ये इंटरचेंजेबली एक टर्म के रूप में यूज़ हो सकता है, मतलब प्राइवाची के रूप में या सिनोनिम के रूप में यूज़ कर सकते हैं. पैस्टिज, पैरोडी और ट्रैवेस्टी, तो ये सब उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि सब स्टैंडर्ड वर्क या एक सही तरीके से किसी वर्क का इमिटेशन ना हुआ हो, ठीक है, जिसमें मतलब कॉमेडी ज़्यादा हो, हंसी ज़्यादा हो, सीरियस सब्जेक्ट को ठीक से ना प्रेजेंट कर पाए हों, बिलो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन हुआ हो चीज़ों का. ये सब उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, पैस्टिज, पैरोडी और ट्रैवेस्टी. इन तीनों को आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा. अच्छे से नहीं समझ में आता तो बोलिएगा, मैं अलग से इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसी प्रेजेंटेशन में. और एक मेजर वर्क की अगर हम बात करें तो टॉम स्टॉपर्ड ने लिखा है एक प्ले जिसका नाम है ट्रैवेस्टीज 1974 में. एक मेजर वर्क आपका अगर हम बात करें बर्लेस्क की तो वो लिखा गया है टॉम स्टॉपर्ड के द्वारा, जो कि एक प्ले है ट्रैवेस्टीज 1974 में. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव, देयर आर 2 टाइप ऑफ बर्लेस्क. अगर हम बर्लेस्क की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बर्लेस्क, वी हैव 2 टाइप ऑफ बर्लेस्क. देयर इज हाई बर्लेस्क एंड लो बर्लेस्क. सो नाउ विल डिस्कस व्हाट इज हाई बर्लेस्क and what is low burlesque. Now, pay very close attention. When a very common subject matter, that is a very common thing, when we use it as a subject matter and a literary elevated language we use for it and form apply to it, and literary elevated language, elevated form apply to a very common thing, then it is a high burlesque. It means a very common thing given very high language, very high appeal. So this kind of burlesque is known as what? High burlesque. Like Alexander Pope's The Rape of the Lock. So high burlesque is that where we use a very common thing, but we use all the literary techniques of like elevated language and the form that we apply to it of a very dignified work. So a very high representational work. So a very high language, very highly elevated language. If we use very highly literary elevated language or a form that is applied to a very simple common term is very high, then it is a high burlesque. So high burlesque example is the Alexander Pope's The Rape of the Lock. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 तरह के हमारे आपके बर्लेस्क हो सकते हैं, एक हाई बर्लेस्क और एक लो बर्लेस्क. जब एक कॉमन सा सब्जेक्ट, एक छोटी मोटी बात को हम बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, बहुत ही मतलब लिटरेरी लैंग्वेजेस, लिटरेरी टेक्निक, सभी चीज़ों का यूज़ करके जब उसको प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही कॉमन सी चीज़ को, तो उसी को बोलते हैं हाई बर्लेस्क. मतलब सब कुछ हाई फाई होगा लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत लो होगा. जैसे अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक, मतलब उस लड़की का जूड़ा काट दिया था उसने, तो छोटी सी बात है, उसको बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से प्रेजेंट करना, इसी को बोलते हैं हाई बर्लेस्क. तो इसमें हंसी मजाक वाला सीन ज़्यादा हो जाता है. तो छोटी सी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना, यही होता है हाई बर्लेस्क. नेक्स्ट वी हैव, next we have when a mocking and irrelevant style is applied to a serious work, it is low burlesque. So when we have a serious work, when we have a very serious topic, a high profile topic, and on that we apply a mocking and irrelevant style, that is, that style do not match that subject matter or the type of work that should be written like this. So this is called as low burlesque. It means that irrelevant language, irrelevant style, when it is applied to a serious work or a serious subject matter, then it is low burlesque. Low burlesque means the style is high. Sorry, the work is serious, but the style is low. Writing style is low. That is, mocking and irrelevant style is applied. When mocking and irrelevant style is applied to a serious work, this is known as low burlesque. Like Samuel Butler's poem Hudibras in 1684. It is a mock heroic narrative poem and it is a satire also. So it is kind of satire actually. When we are talking about burlesque, it can be said to be a satire. So we present things in a manner that it becomes laughable, that people laugh at it. But it should not happen. So this is called as burlesque.
तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हाई बर्लेस्क हो गया। अब अगर लो बर्लेस्क की बात करें तो इसमें क्या होता है, लो बर्लेस्क में क्या होता है कि एक मॉकिंग या इररिलेवेंट स्टाइल अप्लाई करते हैं, मतलब हंसी मजाक वाला या एक मतलब सूटेबल स्टाइल नहीं होता है। किसके लिए हम अप्लाई कर देते हैं, एक सीरियस वर्क के लिए, मतलब एक सीरियस वर्क सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है, उसके लिए हम छोटी मोटी लैंग्वेज का मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं, मॉकिंग लैंग्वेज इररिलेवेंट स्टाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं लो बर्लेस्क। जैसे कि सैमुअल बटलर की पोएम हुडिब्रास है, 1684 में रिटर्न है, ये एक हमारा किसका एग्जांपल है, लो बर्लेस्क का। तो आपसे पूछ सकता है भाई सैमुअल बटलर का कौन सा वर्क है जो लो बर्लेस्क है, तो वो है हुडिब्रास। ये आपसे पूछ सकता है भाई हुडिब्रास किस तरह का बर्लेस्क है, हाई बर्लेस्क है, लो बर्लेस्क है, या बर्लेस्क है या नहीं है, इस तरह से पूछ सकता है। तो ये एक मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है और एक सटायर भी है। तो मेनली सटायर जैसी चीज़ें आ जाती हैं देखिए बर्लेस्क में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स आज के प्रेजेंटेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, एक बर्लेस्क और एक डेकेडेंस। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। इसके बाद और भी कुछ टर्म्स हैं देखिए, बाकी हम डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन है, फिर हमारे पास पिकारेस्क के बहुत सारे टर्म्स हम इसमें हम डिस्कस करते रहेंगे आने वाले प्रेजेंटेशंस में। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाए, नोटिफिकेशन बटन ऑन करिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ सकें। और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। और जो लोग मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं उनको जोड़ दूँगा। जो सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं वही प्लीज़ मुझे मैसेज करें, आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। और आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हैं जो लोग, तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा पैसा देना होगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको प्रेजेंटेशन वहाँ पे मिलेंगे। खैर क्वालिटी अच्छी और बहुत ही अच्छी ये भी है, लेकिन ये फ्री वाला है तो इसमें मतलब इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है। मुझे टाइम मिलता है तो डालता हूँ, नहीं मिलता तो भाई बाई चांस नहीं भी डालता हूँ। तो आप अगर मतलब मुझसे पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है दो चीज़ें डिस्कस कर ली और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स तो लाइक करिए, इसको अच्छे से कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और जो है जो भी मतलब आपके डाउट्स हैं उसको पूछिए। तो ये हमारा बर्लेस्क हो गया इसमें, और हमारा इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था द डेकेडेंस, ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, और कोई चीज़ ना समझ में आए तो बताइए, हम फिर से कुछ ना कुछ वीडियोस आपके लिए बना देंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी। इफ़ यू लाइक द प्रेजेंटेशन, लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर इट, एंड I will try to give you the best presentation here which is going to help you in your UP, TGT, PGT and even NET exam also. For English literature you can subscribe my channel and share it more and more so that everybody can be benefited. So students, see you in the next presentation. Thank you.